قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ قرآن کریم درست مخارج اور صفات کے ساتھ سیکھنے کے لیے ہمارا تجوید کورس پیج جنوری 2024 جاری ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم اگلے قواعد پڑھیں گے، تو آپ سب متوجہ رہیے۔ انشاءاللہ اس کلاس سے ایک اہم قاعدہ آپ سیکھ پائیں گے۔ تو آج کے کنٹینٹس میں ہم تفخیم و ترقیق میں را کی تفخیم بھی پڑھیں گے اور را کی ترقیق بھی پڑھیں گے، یعنی را کو پر کب پڑھا جائے گا، باریک کب پڑھا جائے گا، اور ایز یوزول ہم عمومی اغلاط جو ہماری کامن مسٹیکس ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کریں گے۔ تو اس کو میں دو طریقوں سے آج پڑھاؤں گا، ایک تو ہے ٹریڈیشنل طریقہ، اس سے بھی پڑھاؤں گا، پھر ان کو یاد کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں را کو پر کب پڑھا جاتا ہے۔ اس کے 5 اصل میں رولز ہیں۔ اب میں نے ایک اور رول نمبر 2 کے تحت ایک اور رول ایڈ کیا ہے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو 6 میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو پہلا رول ہے را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے رجل، رجل، ایسے ہی علم، تاروا، ترا نہیں ہم پڑھیں گے، تاروا پڑھیں گے، تاروا، یعنی تا کو باریک، را کو پر۔ اس را پر زبر ہے تو یہ پر ہوگا۔ اس طرح را پر زبریہ پیش، پیش بھی اگر را پہ ہوگی تب بھی پر ہوگا۔ رزقو، رزقو، ٹھیک ہے، ایسے ہی اکثارو، 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 ایسے ہی را پر 2 زبریاں 2 پیش ہو، جیسے اجرن، تو 2 زبر ہیں اس پہ، را پر 2 زبریاں 2 پیش ہوں تو را کو یہاں بھی پر پڑھا جائے گا۔ اجرن، اجرن اگر پڑھیں گے تو یہ باریک ہوگا، پر پڑھنا ہے، اجرن، اجرن، ایسے ہی اجرن، 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 جیم پہ قلقلہ کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح را پر اگر کھڑا زبر ہو تب بھی را کو پر پڑھنا ہے، جیسے ابراہیم، ابراہیم، ٹھیک ہے، ابراہیم۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، را پر زبر یا پیش ہو پر پڑھیں گے، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تو پر پڑھیں گے، را پر کھڑا زبر ہو تو پر پڑھیں گے۔ میں نے ایگزامپلز یہاں پہ دے دی۔ سیکنڈ قاعدہ ہے را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو۔ را ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جزم والے را۔ جزم والے را سے پہلے اگر حرف پر زبر یا پیش ہو تو زبر، جیسے یہاں پہ ہے را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس را کو پر پڑھیں گے، اور شن، اور شن، ارشن نہیں پڑھیں گے ہم، اور شن، اور شن، را پر ام صبرنا، اس را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے یہاں پہ زبر ہے۔ اسی طرح یہاں بھی را ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس را کو بھی پر پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے ترجعون، ترجعون، ایسے ہی یہاں بھی را ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس را کو بھی پر پڑھیں گے، یرزقون، یرزقون۔ تو را ساکن سے پہلے کیا آ گیا؟ زبر یا پیش۔ اچھا، سیم رول اپلائی ہوتا ہے جب را ساکن سے پہلے ایک اور ساکن ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے۔ مثال یہاں پہ را ساکن ہے، اس سے پہلے ایک اور ساکن ہے، اب ہم اس ساکن کو نہیں دیکھیں، ہم دیکھیں اس سے پہلے کیا ہے۔ اگر اس پر زبر یا پیش ہو گئی تو پر پڑھیں گے، اگر زیر ہو گئی تو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہم پڑھیں گے العصر، العصر، را بھی پر، والطور، والطور، یہاں بھی را پر پڑھیں گے، ایسے ہی نور، را پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو را ساکن سے پہلے دوسرا ساکن حرف ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو تب بھی را کو کیا پڑھا جاتا ہے؟ پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلیں گے ہم آگے، یہ 4تھ قاعدہ ہے، را ساکن سے پہلے عارضی زیر۔ عارضی زیر کس زیر کو کہتے ہیں؟ یہ قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے سٹارٹ میں الف لگا ہوتا ہے لیکن اس الف پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے،
तो इस अलिफ को जो हम खुद हरकत देते हैं, कभी कभी हम खुद देते हैं उन अलिफ को हरकत, तो उस अलिफ को जो हरकत दी जाएगी वो हरकत आर्जी होगी, वो असली नहीं होगी, आर्जी होगी। आर्जी का मतलब होता है टेम्परेरी। ये टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि ये हम खुद लगाते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु में अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है, जब आप जबर लगाते हैं तो वो आर्जी जबर होता है। इस तरह हम कुरान करीम में कभी जेर लगाते हैं। ये जो इन अलिफ से पहले जेर लगी हुई है ना, ये आर्जी जेर है, ये खुद लगाई है हमने। जब आप कुरान में इन अल्फाज को ढूंढेंगे तो वहां पे आपको अलिफ खाली मिलेगा। तो यही आर्जी जेर अगर रॉ साकिन से पहले आ जाए तो उस रॉ को हम पुर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुर। जैसे यहाँ पे रॉ साकिन से पहले आर्जी जेर है तो हम पढ़ेंगे एरो जे। क्या पढ़ेंगे? एरो जे। इर जे नहीं पढ़ेंगे, एरो जे। इसी तरह यहाँ भी रॉ साकिन से पहले ये जेर जो है ये आर्जी है। एरो जेऊ, एरो जेऊ। ठीक है, यहाँ भी रॉ साकिन से पहले आर्जी जेर है तो हम पढ़ेंगे एरो जेई। क्या पढ़ेंगे? एरो जेई। यहाँ भी रास्ता से पहले आरजी जेर है तो यहाँ भी हम पढ़ेंगे एरो कैऊ, एरो कैऊ। तो इन सब हरूफ में रास्ता से पहले आरजी जेर है। अब आप बोलेंगे आरजी जेर को हम कैसे पहचानें? तो कुरान करीम में इन अल्फाज को आप जेर के साथ नहीं पाएंगे। यहाँ हमने सीखने के लिए इनके नीचे जेर लगा दिए, वरना इनके नीचे असलन जेर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि हम कब जबर लगाएं, कब जेर लगाएं। तो ये एक अरबिक ग्रामर का टॉपिक है। अगर आप इस चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह। पांचवा कायदा है रॉ साकिन से पहले जेर असली दूसरे कलमे में। देखिए यहाँ पे आरजी जेर थी। क्या थी? आरजी जेर। ठीक है, अब यहाँ पे असली जेर है, लेकिन ये असली जेर उसी कलमे में नहीं है, यानी उसी वर्ड में नहीं है। देखिए रॉ साकिन है, रॉ साकिन से पहले जो जेर है वो दूसरे वर्ड में, रब एक वर्ड है, फिर इरहम हुमा ये दूसरा वर्ड है। तो रॉ साकिन से पहले जेर तो है, ये जेर असली भी है, लेकिन ये जेर दूसरे कलमे में है, तो दूसरे कलमे में होने की वजह से ये रॉ क्या होगा? ये पुर हो जाएगा। हम पढ़ेंगे रब बेर हम हुमा, रब बेर हम हुमा। ठीक है, आप याद रखेंगे रॉ साकिन से पहले अगर जेर हो और वो दूसरे वर्ड में हो तब भी रॉ साकिन को पुर पढ़ेंगे। ऐसे ही यहाँ भी रॉ साकिन से पहले जो ये जेर है, ये जेर दूसरे कलमे में है, ये सेम वर्ड में नहीं है, दूसरे वर्ड में है। तो इसलिए हम इस रॉ साकिन को भी पुर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रब्बिरजिऊनी। यहाँ पे अगर आपने पढ़ा रब्बिरजिऊनी, गलतियां इन दो में लोग करते हैं, इनको बारीक पढ़ लेते हैं। इरजे पढ़ना होता है तो वो पढ़ते हैं इरजे, रब्बिरजिऊनी पढ़ना होता है तो ये पढ़ते हैं रब्बिरजिऊनी, रब्बिरजिऊनी। यहाँ भी देखो आप, इसमें भी रॉ साकिन से पहले जेर है, ये असली है, लेकिन दूसरे कलमे में। दूसरा कलमा इसमें याद रखना, दूसरे कलमा यानी वो। तो हम पढ़ेंगे एनेर तब तुम, इसको भी पूरा पढ़ेंगे। यहाँ भी सेम कंडीशन, ये अलग कलमा है अलिफ से इधर। तो रॉ साकिन से पहले यहाँ भी जेर है और ये असली है, लेकिन इसी कलमे में नहीं है बल्कि दूसरे में। तो इसलिए इस रॉ साकिन को भी पूरा पढ़ेंगे। आमिर तैबू, आमिर तैबू। अगर रॉ साकिन से पहले आपको जेर को चेक करना होगा ना, ये इसी कलमे में है या दूसरे में है, तो आप इस ट्रिक को फॉलो करें। अगर इनके बीच में अलिफ हो गए ना, तो अलिफ इंडिकेट करता है कि आगे दूसरा कलमा है। यहाँ पे ये एक ट्रिक है, ये कोई जनरल रूल नहीं है। ठीक है, ये रॉ साकिन से पहले जेर को अगर आपको पहचानना है कि सेम कलमे में है या दूसरे कलमे में है, तो आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अलिफ इंडिकेट करता है कि सेकंड कलमा यहाँ से शुरू हो रहा है। चलिए जी, सिक्स्थ रूल हम पढ़ते हैं। रॉ साकिन के बाद हुरूफ मुस्तअली में से कोई हर्फ उसी कलमे में। देखो यहाँ रॉ साकिन से पहले जेर है और ये जेर असली भी है, और इसमें दूसरी शर्त भी है, ये इसी कलमे में भी है। दोनों है इसमें, एक तो ये असली भी है और सेम वर्ड में भी। लेकिन होना ये चाहिए था कि इसको हम बारीक पढ़ते, लेकिन आगे कौफ आ रहा है, कौफ हुरूफ मुस्तअलिया है यानी पुर हरफ है। इसको हमें बारीक पढ़ना था, लेकिन आगे पुर हरफ आ गया, इसकी वजह से ये रॉ साकिन पुर हो जाएगा। तो रॉ साकिन के बाद अगर हुरूफ मुस्तअलिया आ गया, उसी कलमे में आ गया, तो उस वक्त हम इस रॉ साकिन को पुर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फेरो,
फिरक़तिन, ठीक है। इस तरह यहाँ भी रॉ साकिन के बाद साद आ गया, तो ये भी हुरूफ मुस्तअली में से, अगरचे इस तरह हमें रॉ साकिन को बारीक पढ़ना था, लेकिन साद हुरूफ मुस्तअली आ गया, तो इसकी वजह से हम इसको क्या पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे मेर सादिन, मेर सादिन, मेर सादिन। समझ आ गया यहाँ तक? इस तरह यहाँ भी रॉ साकिन से पहले जेर है, ये असली है। पढ़ना तो बारीक चाहिए था हमें, लेकिन आगे हुरूफ मुस्तअलिया पुर हर्फ आ रहा है ता, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। अभी बताइए आप, ये रूल्स आपको समझ आ गए अच्छे से? ये 5 रूल्स आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगा, इनको याद रखने के लिए, हो सकता है आपको याद ना रहे। चलिए हम अब पढ़ते हैं कि इसकी तरकीब कब होगी रॉ साकिन, ठीक है। देखो रॉ साकिन को बारीक कब पढ़ा जाएगा, ये थोड़ा इजी है, ये उतना टफ नहीं। यहाँ पे रॉ के नीचे जेर, या दो जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे रॉ साकिन के नीचे जेर है या दो जेर है, तो इन सबको पढ़ेंगे बारीक। वन नहारी, अब री नहीं पढ़ेंगे, री। इस तरह रिजाल, अमरिन, अमरिन। इस तरह शर्रिन, नफ्फाताति, आप पढ़ते हैं ना, उसमें ये सब कुछ है, ठीक है। वन नहारी रिजालुन अमरिन, ठीक है। तो इन सब में जेर या दो जेर। इस तरह दूसरा है, रॉ साकिन से पहले जेर असली इसी कलमे में हो। अभी मैंने वहां पे बताया था, अगर रॉ साकिन से पहले आरजी जेर तब पुर पड़ा जाता है। रॉ साकिन से पहले असली जेर है, लेकिन इसी कलमे में नहीं है, दूसरे में है, तब भी पुर पड़ा जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, रॉ साकिन से पहले जेर असली हो, वो इसी वर्ड में, सेम वर्ड में, रॉ साकिन भी वही होना चाहिए और जेर असली भी उसी वर्ड में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे, देखिए ये रॉ साकिन है, इससे पहले जेर है, ये असली है, ये टेम्परेरी नहीं है। और देखिए सेम वर्ड में, इसी वर्ड में, वर्ड दूसरा नहीं है। तो अब इस रॉ को बारीक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फस्बिर, फस्बिर, फस्बिर। इस तरह देखिए कुम फअंज़िर, रॉ साकिन से पहले जेर है, ये जेर असली भी है और इसी वर्ड में भी है। तो इस रॉ साकिन को क्या पढ़ेंगे हम, बारीक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बारीक, कुम फअंज़िर। समझ आ गया? नेक्स्ट पे चलते हैं, ये थर्ड है। थर्ड रूल क्या है, रॉ साकिन से पहले याए साकिना हो, अगर रॉ साकिन से पहले याए साकिना हो, तो उस वक्त भी हम बारीक पढ़ेंगे। देखिए ये रॉ जो है ना, ये साकिन नहीं है, ये आपको पता है, इस पे दो पेश है। तो खैरुन में रॉ को हम पुर पढ़ेंगे, लेकिन इसके आगे ये सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का मतलब होता है हमें वहां पे ठहरना है, आयत मुकम्मल होने की अलामत है। अब हम इस पे वक्फ करेंगे। वक्फ के हमें आगे रूल्स पढ़ेंगे। जब हम वक्फ करते हैं ना, ठहरते हैं, ठहरते वक्त पता है क्या हो जाता है, ठहरते वक्त क्या होता है, ठहरते वक्त खैरुन की जगह हम पढ़ेंगे खैर, लास्ट हरफ को साकिन किया जाएगा यहाँ। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि साकिन कब करना है, किस में तब्दील करना है। तो खैर यहाँ पे साकिन होगा, दो पेश को हम जज्म से बदलते हैं। तो ये बन गया रॉ साकिन। रॉ साकिन से पहले ये क्या आ गया, या साकिन, यानी जज्म वाला या। तो अब क्या बनेगा, रॉ साकिन से पहले या साकिन आ गया, तो वक्त की सूरत में, ठहरने की सूरत में हम इस रॉ को बारीक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे खैर, खैर। क्यों बारीक पढ़ा, क्योंकि रॉ साकिन से पहले या साकिन आ गया। अगर हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, सीधे पढ़ेंगे खैरुन, 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 अगर सीधे पढ़ा तो तब इस रॉ को पुर पढ़ेंगे, तब इस रॉ को बारीक नहीं पढ़ेंगे। बारीक कब पढ़ेंगे, जब वक्त करेंगे तो ये साकिन बन जाएगा, तो रॉ साकिन से पहले या ही साकिन आ गया। इसी तरह ये भी है, नज़ीरुन, नज़ीरुन में नज़ीरुन, रॉ पुर होगा, लेकिन अगर वक्फ करेंगे तो ये साकिन हो जाएगा, रॉ साकिन बन जाएगा। तो रॉ साकिन से पहले या साकिन आ गया, तो ये इसको हम पढ़ेंगे नज़ीर, तो ये रॉ हो जाएगा उस वक्त बारीक, क्योंकि रॉ साकिन से पहले या साकिन आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ रूल की तरफ। जब हमें क्या करना है, हमें जब बारीक पढ़ना है रॉ साकिन, देखो क्या होता है, अगर रॉ साकिन से पहले, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना, रॉ साकिन से पहले जेर असली इसी कलमे में हो। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ऐसे ही आ गया रॉ साकिन से पहले और कोई साकिन हर्फ है और उससे पहले जेर असली है और सेम कलमे में, उस वक्त भी रॉ साकिन को हम बारीक पढ़ेंगे। ये देखो दो साकिन आ गए, रॉ साकिन से पहले और एक और साकिन आ गया, उससे पहले हम देखेंगे अगर जेर असली है और इसी कलमे में। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अस्सिह, अस्सिह,
इस तरह यहाँ पे भी रॉ साकिन से पहले दूसरा साकिन है, उससे पहले जेर असली है और सेम वर्ड में है। तो हम इस रॉ साकिन को पढ़ेंगे बारीक, हम पढ़ेंगे हिजर, हिजर। ठीक है, सेम रूल यहाँ भी फॉलो होगा। रॉ साकिन से पहले एक और साकिन है, उससे पहले जेर है लेकिन ये असली है और सेम वर्ड में है, हम इसको पढ़ेंगे जिक्र, जिक्र। रॉ भी बारीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह रॉ साकिन से पहले एक और साकिन है, उससे पहले जेर असली है और सेम वर्ड में है, सेम कलमे में। तो इस रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फिक्र। क्या पढ़ेंगे? फिक्र। अच्छा, ये दो साकिन हो जाते हैं जमा, यहाँ पे दोनों को पढ़ना होता है, ये हम इंशाल्लाह आगे भी आपको सिखाएंगे। तो फिक्र, जिक्र, हिज्र, सिह। तो ये उमूमन हो जाता है वक्त में। अच्छा, ये खैर, नज़ीर, इसके एग्जांपल्स आप सूरह मुल्क में जा बजा आयत मुकम्मल होने पे देख सकते हैं। नज़ीर है, कदीर है, बसीर है, खबीर है, तो वहां पे आप इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं। चलिए जी, अब इसको याद करने का एक सिंपल मेथड मैंने बनाया है, हो सकता है आपको ये इजी लगे, हो सकता है कुछ को ये टफ लगे। अगर आपको इजी लगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर टफ लगा तो आप जो मैंने पहले ही पढ़ाया उससे भी आप समझ सकते हैं। इन कवायद को समझने के लिए मैंने कुछ इनके ग्रुप्स बनाए हैं। जो रॉ है इसके दो टाइप्स हैं मेनली, अगर हम देखें, या तो रॉ मुतहर्रिक हो सकता है या रॉ हो सकता है साकिन। साकिन का मतलब रॉ पे जज्म हो सकती है। मुतहर्रिक का मतलब क्या है? रॉ पे जबर, जेर, पेश, दो जबर, दो जेर, दो पेश, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ये हो सकते हैं। ये सब हरकतें हैं अगर देखा जाए, जबर जेर पेश हरकत हैं। दो जबर दो जेर दो पेश ये भी हरकत की टाइप से, अगरचे ये डबल हरकत। ठीक है, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश ये भी एक हरकत है, खड़ी हरकत है। तो मुतहर्रिक रा में ये 9 कैटेगरीज आती हैं। तो आप मुतहर्रिक रा में कब पुर पढ़ेंगे कब बारीक पढ़ेंगे, आप ऐसे पहचानिए इसको। जब रॉ पर जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश हो, उस वक्त रॉ को आप कब पुर पढ़ेंगे कब बारीक पढ़ेंगे, आप इजीली याद। अगर रॉ के ऊपर हरकत हुई, ये मैंने लिखा है, ऊपर क्या आ सकता है? जबर आ सकता है, पेश आ सकता है, दो जबर आ सकता है, दो पेश आ सकता है, खड़ा जबर आ सकता है, उल्टा पेश आ सकता है। तो अगर आपने रॉ के ऊपर कोई हरकत देखी उसको आप पढ़ेंगे पुर। रॉ के ऊपर अगर कोई हरकत देखेंगे उसको आप क्या पढ़ेंगे? पुर पढ़ेंगे। अगर रॉ के नीचे आपने हरकत देखी तो उसको आप बारीक पढ़ेंगे। जैसे जेर देखेंगे, दो जेर देखेंगे, खड़ी जेर देखेंगे, आप उसको पढ़ लेंगे बारीक। ये आ गया समझ? हो गया ना, रा मुतहर्रिक का मसला हल हो गया। मुतहर्रिक जहां आप पाएंगे, ऊपर हरकत हुई तो पुर पढ़ेंगे उस मुतहर्रिक रा को, नीचे हरकत हुई तो बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं रॉ साकिन पे। रॉ साकिन के कुछ रूल्स हैं आपको याद रखने हैं। रॉ साकिन को बारीक पढ़ने के दो कंडीशंस क्या है? बारीक पढ़ने की दो शराइतें, दो कंडीशंस है। जब वो दोनों कंडीशंस पाई जाएंगी तब रॉ को हम, रॉ साकिन को हम बारीक पढ़ेंगे। रॉ साकिन को याद रखिए, जज्म वाले रॉ को। इसका तो मैंने बताया मुतहर्रिक। रॉ साकिन को तब हम बारीक पढ़ेंगे जब दो कंडीशंस होंगी, बारीक पढ़ने की दो कंडीशंस है। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो तब क्या पढ़ेंगे? पुर पढ़ेंगे, बारीक मत पढ़ सकते। अच्छा, अगर एक ही कंडीशन पूरी हुई, पहली पूरी हुई दूसरी नहीं हुई, तब भी हम क्या पढ़ेंगे? पुर पढ़ेंगे। अगर दूसरी पूरी हुई पहली नहीं हुई, तब भी हम पुर पढ़ेंगे, क्योंकि बारीक पढ़ने के लिए हमें दो शराइत चाहिए थी। अगर दो में से एक आ गई तब पुर पढ़ेंगे, अगर दो में से दोनों नहीं हुई तो तब भी पुर पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं बताऊंगा वो दो शराइत क्या है। देखो क्या होना चाहिए, रॉ साकिन से पहले होना चाहिए जेर असली, परमानेंट जेर होना चाहिए। एक रॉ साकिन से पहले, पहली शर्त क्या है? रॉ साकिन से पहले होनी चाहिए जेर असली। और दूसरी शर्त है कि वो जेर असली उसी वर्ड में होनी चाहिए, सेम वर्ड में। जिस वर्ड में रॉ साकिन है उसी में जेर असली भी होनी चाहिए, वो अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक तो जेर असली होनी चाहिए, वो सेम वर्ड में होनी चाहिए, तब क्या पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। ये दो शराइत है, रखा याद। जैसे फस्बिर, यहाँ रॉ साकिन से पहले जेर असली है और इसी कलमे में दोनों शराइत पूरी हुई तो अब हम इसको बारीक पढ़ेंगे। सेम वे, कुम फअंजिर, रॉ साकिन से पहले जेर असली है और इसी कलमे में दोनों शराइत पूरी हुई तो अब हम इसको पढ़ेंगे बारीक। अगर इन दोनों में से अब एक ही पूरी होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, रॉ साकिन से पहले जेर असली नहीं है, आरजी जेर, और इधर से वो सेम वर्ड में, तो एक कंडीशन तो पूरी हो गई ये वाली हमारी।
लेकिन ये वाली पूरी नहीं हुई। जब दोनों कंडीशन पूरी नहीं हुई, एक ही कंडीशन पूरी हुई, तो अब हम बारीक नहीं पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे हम? पूर्व। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल्स दी। एरो जे रॉ से पहले जेर तो है, लेकिन ये असली नहीं है। सेम वर्ड में है लेकिन असली नहीं है, तो आरजी है, इसकी वजह से इसको हम पढ़ेंगे पूर्व। तीसरी सूरत क्या बन सकती है? ये वाली कंडीशन तो है लेकिन ये नहीं। देखिए कैसे। रॉ से पहले परमानेंट जेर तो है, लेकिन वो इसी वर्ड में नहीं है वो। तो जब रॉ से पहले जेर असली हो लेकिन दूसरे वर्ड में, यानी दूसरी कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई। दूसरी कंडीशन क्या थी? इसी कलमे में होनी चाहिए थी, इसी वर्ड में होनी चाहिए थी। तो जब अनदर वर्ड में है, तब भी हम इसको पूर्व पढ़ेंगे, बारीक अब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बारीक पढ़ने की दोनों कंडीशंस बराबर नहीं हो रही हैं। आगे समझ। चलिए जी, अब रह गया एक कायदा, वो है एक्सेप्शनल कायदा। वो क्या है? एक्सेप्शनल कायदा एक है, वो आप इसे याद रखें। वो क्या है? जब रॉ से पहले जेर असली है और इसी कलमे में भी था, दोनों कंडीशंस ये पूरी हो रही थी, पढ़ना तो बारीक था, लेकिन उसके बाद एक और बंदा आ गया, वो हुरूफ मुस्तालिया है। हुरूफ मुस्तालिया ने इनका नहीं माना, हुरूफ मुस्तालिया ने अपनी डोमिनेंस दिखाई, क्योंकि वो पुर हरफ है। तो जब बारीक और पुर एक जगह जमा हो गए, तो पुर वाला ही कायदा फॉलो होगा। इसलिए हम इसको पुर पढ़ेंगे। यहाँ पे रॉ से पहले जेर असली थी, इसी वर्ड में भी थी, दोनों कंडीशन फिल हो गई थी, लेकिन सामने से हुरूफ मुस्तालिया आ गया, उसने इन दोनों को, इसको भी अपने साथ पुर बना दिया। तो अब बनेंगे फेरो क्वातीन, फेरो क्वातीन, फेरो क्वातीन। ठीक है। यहाँ भी रॉ से पहले जेर है, ये असली है सेम वर्ड में, लेकिन हुर्फ मुस्ताली आ गए, इसने इसको पुर बना दिया। ये बनेगा मेरो सौदिन, मेरो सौदिन, मेरो सौदिन। अब लास्ट वाला कायदा है, वो है, वो भी एक्सेप्शनल में आता है। रॉ से पहले या साकिन हो। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी। खैर, नजीर, ये वक्फ की सूरत में अप्लाई होते हैं। अभी तक आपको कोई बात समझ ना आई हो तो मुझे बता दीजिए। अच्छा, आपने क्वेश्चन किया है कि असली जेर और आरजी जेर को कैसे पहचाने। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप पहले से क्लास में थे, मैंने कहा आरजी जेर और असली जेर में ये फर्क है कि आरजी जेर जब आप कुरान खोलेंगे, कुरान पढ़ते हुए आपको उस हर्फ के नीचे कोई हरकत नहीं दिखाई देगी। जब आप खुद जेर लगाएंगे, वो आरजी जेर होगा। अब आप बोलेंगे यहाँ तो जेर लगी हुई है, ये जेर हमने आपको समझाने के लिए लगाई है, वरना कुरान करीम में अगर आप इन अल्फाज को देखेंगे तो उनके नीचे आप हरकत नहीं पाएंगे। ये जो है ना, एरो जी, आप सूरह फज्र खोलिए, उसमें है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह, उसके बाद है एरो जी, एरो जी। तो एरो जी में आप अलिफ के नीचे जेर नहीं देखेंगे। आप इसको खोल लीजिएगा कुरान शरीफ को, तो वहां पे देख लीजिएगा आप सूरह फज्र आखिरी आयत। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है या आपको समझना आया हो? कहाँ आरजी जेर लगाएंगे कैसे, ये मैंने पहले ही इसका आंसर भी दिया, फिर बताता हूं मैं। ये एक ग्रामर का मसला है, अरबिक ग्रामर का मसला है कि कहाँ आरजी जेर लगानी होती है, कहाँ जबर लगाना होता है। ये आपको फिलहाल तो कुरान करीम के इन अल्फाज को तो आपको पता होगा, ये अल्फाज फिलहाल याद कर लीजिए। यहाँ पे आरजी जेर ही लगानी है इन चार में, जो मैंने यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल पीछे दे दी हैं। लेकिन आप फिर अरबिक ग्रामर का कोर्स देखिए, उसमें आपको ये एक लेक्चर ही पढ़ाया गया है इस पे, तो आप उससे ये समझ जाएंगे इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन? चलिए, तो अब हम कॉमन मिस्टेक्स की तरफ चलते हैं जो इसमें हम करते हैं। देखो कॉमन मिस्टेक्स में क्या होता है। रॉ साकिन को पुर पढ़ते वक्त दुरुस्त अदायगी न करना। जब रॉ साकिन के कायदे आ गए ना, वहां पे देखो क्या क्या आया था। वहां पे आ गया था रॉ साकिन से पहले आरजी जेरो। तो एरोजी में बाज लोग इसको बारीक पढ़ते हैं, एरोजीओ में भी। तो इस तरह रॉ साकिन से पहले जब जेर असली दूसरे कलमे में हो, उस वक्त भी हम ख्याल नहीं रखते हैं। उस वक्त मिसाल रब्बिर हम हुमा में रॉ साकिन को हम बारीक पढ़ लेते हैं, हालांकि पढ़ना चाहिए था पूरा। और इसको लोग आधे पढ़ते हैं रबी रहम, असल में है रब्बिर हम हुमा। ठीक है, रब्बिर हम हुमा। ठीक है। ऐसे ही रॉ से पहले या साकिन होने की सूरत में भी बाज लोग पुर पढ़ते हैं, खयीर, नजीर, बसीर, ईद के रॉ को पुर पढ़ते हैं, हालांकि पुर नहीं पढ़ना है, ये बारीक पढ़ना है। बसीर, नजीर, इस तरह कदीर, इनमें पढ़ना है बारीक।
یہ ہے آج کا لیکچر. تو اگر اور ضرورت ہو کچھ سمجھنے کی تو آپ گروپ میں میسج کر سکتے ہیں. اپنے ٹیچرز کو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر کوشچن ہو تو میں 1 منٹ اور ویٹ کروں گا آپ کے لیے. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاک اللہ خیرہ کلاس جوائن کرنے کے لیے. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ بتا دیجیے گا. انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز ہم یہ کمپلیٹ کرنے والے ہیں. ہو سکتا ہے ہم پھر اس کی انشاءاللہ پریکٹس سیشنز اور کریں. آپ پچھلے کو بھی ریوائز کرتے رہیں اور خاص کر پریکٹس پہ توجہ دیجیے. جتنی پریکٹس کریں گے اتنا آپ اچھے سے سیکھیں گے. صرف سمجھنا ہی نہیں ہے, ہمیں ان کو اپلائی بھی کرنا ہے. اور جو ہم آپ کو ڈی پی بھی بھیجتے ہیں اس کو آپ پھر وائس میں پڑھا بھی کریں. قرآن کریم کو کھولیں, ان قواعد کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں پریکٹیکلی, کیونکہ آگے ایگزام بھی آپ کو ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ آپ تیار رہیے. اب کچھ ہی لیکچرز ہمارے بچے ہیں, اس کے بعد ہمارے ایگزام ہونے والے ہیں انشاءاللہ جلدی. تو اگر ریویژن کی ضرورت پڑی تو آپ ریویژن بھی کرائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو فی الحال آپ سب تیاری کیجیے انشاءاللہ. اور آج شب معراج بھی ہے, جن خوش نصیبوں کو عبادت کر نصیب ہوگی. تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا مخلص بندہ بنائے. آمین بجاہ نبی کے الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.